not a luxury and is for all proves this very art festival in Delhi. Today we are here at Lodi Art Festival जो कि 10 साल से हो रहा है. ये 10वां साल है. आज घूमेंगे गलियों में, आर्ट एक्सप्लोर करेंगे, आर्टिस्ट की ज़िंदगी एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि 10 साल से जो ये आर्ट फॉर ऑल, आर्ट को एक्सेसिबल बनाने की मुहिम चल रही है, उसके पीछे कहानी क्या है, कारण क्या है. तो चलिए चलते हैं. आपके घर वालों को पता है कि आप यहाँ दीवारें पेंट कर रही हैं? हाँ, उनका क्या सोचना है इस चीज़ के बारे में? उनको तो अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ तो क्रिएटिव काम कर रही हूँ और ये मेरी चीज़ों में ही फ़ायदा होगा वैसे, तो उनको तो अच्छा. आर्किटेक्चर की नौकरी है ना अभी आपकी साइड बाय हाँ, साइड? हाँ. हाँ, नौकरी रख के जो है पैशन को परस्यू किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है. तो ऐसे कुछ नहीं है कि नौकरी तो इम्पोर्टेंट है, बट हम ऐसा हमेशा पैसों के पीछे तो भाग नहीं सकते. तो कुछ विचार तो सेविंग वगैरह तो सभी करते हैं, तो उसमें टाइम निकाल के आर्ट को भी वैल्यू देना चाहिए. सही बात. I've come across a painter who's from Latin America. Anyway, so what are you painting as of now? I'm painting here a scenography of 4 women selling her fruits in the markets. And yeah, there is like this connections like of Latin American and Indian women. So they would wear like traditional clothes with like patterns from Peru and from India. Yes. So it's like you're drawing a sort of comparison between Indian and Latin American women. Exactly. Okay, wow, that sounds wonderful. Okay, now that this is the theme of your whole painting, drawing a comparison between Indian and Latin American women, what all differences have you found by now between Latin American women and Indian women? I have the feeling all these women are very strong. Like from both the places? Yes. Wonderful. The difference is, of course, like it's cultural. Okay, cultural difference, right. You have given me a lot of questions now. First would be, what is public art that these guys are doing here? Yeah. So public art is basically an art that is accessible to all. Doesn't matter whether you are rich, poor, woman, man, transgender, or you come from any section of the society, what is your race, what is your ethnicity, it does not really matter. Art is for all. And I think START also has a bag which says art for all. The concept is for public art, that art is out there in a public space. You have to, you have the access to the art without even paying for a ticket or without even like going to a particular place to see it. It is out there for you and for everybody. ये बच्चा भी देख सकता है, ये एक औरत भी देख सकती है, एक आदमी भी देख सकता है. You can participate into it. You can connect to the art. That is why this is in public space. And then it becomes a little different from art which is inside galleries, is because galleries का art ना हम sections divide कर देते हैं society में कि जिसकी high intellect है वही art देख सकता है, common लोगों के लिए art नहीं है. So public art का concept होता है हम common, स्पेशल हर तरीके के लोगों के लिए आर्ट को इक्वली सर्व करेंगे पब्लिक स्पेसेस में. How is art different in India from UK? The whole practice of creating art pieces or maybe practicing art itself? Here, there's a lot more, I think, traditional. A lot of kind of like things that's honor or like has like a kind of religious context. Yep. I think in the UK, people use it more as like a form of self-expression, which I think here it's kind of more as like a collective thing. No, they do that in India as well. It's just that you guys haven't come across something like that. Probably it, yeah. Anyway. Art is for somebody who is viewing it, not for somebody who is making it. बनाने वाला तो अपने मन से बनाता है, देखने वाला डिसाइड करता है कि उसको क्या दे. हूँ तो मैं आर्किटेक्ट, तो हाँ मुझे मज़ा आता है. हाँ, इंडिया में एक तो आर्किटेक्ट्स भी बहुत कम हो गए, ये प्रजाति विलुप्त होते जा रही है आर्किटेक्ट्स की. ये बहुत दिन बाद किसी आर्किटेक्ट से मिला हूँ मैं. ये उन एस्थेटिक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई मैसेज दे दीजिए आप जो यहाँ आ रहे हैं, एस्थेटिक वीडियोस बना रहे हैं, चल जा रहे हैं. व्हाट आर पीपल मिसिंग आउट ऑन? I think instead of looking at 50 different murals, आप 1, 2 या 3 murals को देखिए, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए, लेट इट कंज्यूम. और अगर सारे कंटेंट क्रिएटर्स बांट लें, हम ये 4 म्यूरल के बारे में दिखाएंगे, हम ये 3 म्यूरल के बारे में दिखाएंगे, तो आई थिंक हमारी ऑडियंस यहाँ नहीं भी आए तो एक एक म्यूरल को बहुत आराम से, बहुत इलेबोरेटेड वे में देख पाएगी. देन इट विल बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल डिजिटल मीडिया म्यूजियम देयर.
तो जस्ट इन केस यू आर प्लानिंग टू कम टू अटेंड द लोधी आर्ट फेस्टिवल, चलना बहुत पड़ेगा, सब कुछ फ्रैगमेंट्स में, यहाँ पे एक जगह पे आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। बाकी चलिए, चल ही रहे हैं, कैमरा पर्सन और मैं थक हार के अनजान वीरान सड़कों पे चल ही जा रहे हैं। काफी लोग आ चुके, कल भी लोग आए थे, आज 2-3 मैडम आई थी, वो पूछ रही थी, बट मेरे हिसाब से यहाँ कहीं नहीं चल रहा है। मैंने यहाँ मैंने देखा कई जगह, यहाँ पे कहीं नहीं दिखा मुझे। अच्छा, यहाँ कहीं आर्ट फेस्टिवल नहीं चल रहा? नहीं, यहाँ नहीं। ऐसे कोई मतलब घूमते बाल्टी पेंट लेके? लोधी स्टेट में हो, यहाँ लोधी कॉलोनी में नहीं है। पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कहाँ पर एक्चुअली काम चल रहा है। हाँ, इसलिए क्योंकि ये लोधी कॉलोनी काफ़ी बड़ी है, लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ी, और हमारे जो म्यूरल्स है वो बड़े स्कैटर्ड है, काफ़ी फैले। तो ये जो मैप्स जो हमने जगह जगह पे लगाए हैं, उसकी सहायता से वो फाइंड आउट कर सकते, ट्रैक कर सकते कि ये म्यूरल यहाँ पर है, वहाँ पर है। और हर म्यूरल के साथ हमने एक प्लाक भी लगाया है जो इंग्लिश और हिंदी में है, जिसमें उस पर्टिकुलर म्यूरल के पीछे का क्या कंसेप्ट है, इसकी क्या स्टोरी है, उसमें दिया है, और थोड़ा आर्टिस्ट के भी बारे में दिया है, और जो सपोर्टर्स है उनको भी हमने एक्नॉलेज किया है। Why do you think people do art? Like, do they do for making money or do they do it for something else? I think for real. Yeah, for real. Of all my artist colleagues, they do art because it's a need. I think that they love to do it. It's not because of the money. So it becomes in some moment something more like because of galleries, and this is how you make this financial way. But the beginning always is because they really want to do it. Cool. Off camera you mentioned कि बाकी मीडिया आउटलेट्स, सोशल मीडिया क्रिएटर्स एक रॉन्ग लाइट में प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे इस आर्ट फेस्टिवल पब्लिक आर्ट को। Not wrong to be precise, but they are missing on a very important link. I think so. And what is that link? That important link? The link is that art is not a luxury, it is sustenance. हमें अपनी ज़िंदगी में आर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, किसी इवेंट में आके देखने की चीज़ नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी में उतारने की चीज़ है। और इसीलिए वॉल्स पे इसको बना रहे हैं। 10 साल पहले ये सेम फेस्टिवल हुआ था, यहाँ पे 50 से ज़्यादा मूरल्स हैं जो अभी भी इंटैक्ट हैं। विद टाइम डेफिनेटली वो टार्निश होंगे, वेदर का असर पड़ेगा, लोग आएंगे जाएंगे, आर्ट के साथ वो इंटरैक्शन है। आर्टिस्ट कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी पेंटिंग वैसी की वैसी बनी रहे, वो चाहते हैं कि उनकी पेंटिंग पे कुछ लेयर्स जमे। सोसाइटी वहाँ है, इस बात का मतलब इस बात का एक परिणाम होता है वो। It gives an essence कि yes we are in a living society, we are not dead people, that we don't care about art. हो जाती है इंडिया में कमाई आर्ट करके? It depends कि हम कितने लेवल की कर रहे हैं, like if somebody's passion is that, and yeah, like हो ही जाता है। अगर अभी जो इंडिया में इतने इंडिया सारे में तो इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है, कि लोगों को तो लगता है कि हाँ टाइम पास ही है, आर्ट को बहुत लोग टाइम पास के जैसा सोचते हैं। All art is political in the sense that it serves someone's politics. तो is art political? क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्ट पॉलिटिकल होता है? I don't feel like art is political. Is it supposed to be political? No, I don't feel like. Art is a pure thing, so I really don't feel like art should be political. Like for me, I don't like politics. ठीक है, आपने कहा कि आर्ट इज़ अ रियली प्योर थिंग, इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल। फॉर इंस्टेंस, आप अपने आर्ट में अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करती हैं। हाँ। सपोज आपका थॉट आइडिया है चाइल्ड अब्यूज़, आप उस पर कुछ पेंट कर रही हैं, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो आपका आइडिया है। हाँ। तो वो तो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल हो ही जाएगा ना। तो वो पॉलिटिकल नहीं हुआ ना, वो तो अवेयरनेस हुआ जो कि हम दुनिया में लाना चाहते हैं, तो वो वैसा हुआ। तो दीदी वो भी तो पॉलिटिक्स में आता है ना। अगर आप समाज के हित में कुछ करिए, समाज में आपको आवाज़ उठा रही हैं, बात उठा रही हैं, हाँ। हर इंसान रिलेटेड है ना पॉलिटिक्स से। हाँ। हर इंसान उसका असर पड़ता है हर इंसान पे। This is the 10th year we are celebrating of Lodhi Art District. We started painting, the facades of the Lodhi colony quarters, जो CPWD की buildings है। यहाँ पे हमने 10 साल पहले शुरुआत की थी, and over the period of 10 years, we have done about 70 different murals, both by national as well as international artists, and each mural carries some sort of message, and it also connects with the people who live here and who live surrounding Lodhi colony. सर, टेल अस समथिंग अबाउट द इंसेप्शन की शुरुआत कैसे थी, आइडिया क्या था, थॉट क्या था ऑर्गेनाइजर्स का ये शुरू करने के पीछे? Okay, so the whole objective of Start India Foundation was to take art from the confines of the galleries into the public spaces.
क्योंकि अगर आप देखते हो कि हमारे NGA में या जो ये बड़ी बड़ी जो गैलरीज होती है उसमें इतना सारा आर्ट होता है, बट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली गो? वेरी फ्यू पीपल, राइट? बट हो सकता है कि any person from a so-called marginalized communities, Ariksha puller may also have that artistic bent, लेकिन वो लोग hesitate करते हैं whether they would be allowed or not. So we thought, why not to take art from the confines of the gallery and take them into public spaces where we can really make it very democratic for everyone, so everyone gets benefited, everyone feels touched by the art. And that's how we started doing public art murals in different spaces. And then we saw this Lodhi colony and thought that this can be really converted into a very sort of focused open art gallery, and that is how we came up with this art district concept, and this is the first art district of the country. देखिए आज लोधी आर्ट फेस्टिवल घूमने के बाद यहाँ पे पेंटर्स, आर्टिस्ट, ऑर्गेनाइजर्स और वॉलंटियर से बात करके बहुत कुछ पता चला, स्पेशली पब्लिक आर्ट के बारे में, उसके नुआंसेस के बारे में पता चला, एंड हाउ दे बिलीव कि सोशल मीडिया इज़ किलिंग द कल्चर, द ट्रू वाइब ऑफ पब्लिक आर्ट, स्ट्रीट आर्ट। तो उन चीज़ों के बारे में आज बहुत कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या पब्लिक आर्ट को और प्रमोट करना चाहिए, एंड हाउ कैन थिंग्स बी बेटर? मेक श्योर टू कमेंट दैट below in the comment box. Baki for more such news reports, ground reports, news insights, make sure to like, follow and subscribe The Edge Originals. This is Mrinal Kumar signing out with video journalist Sushil Kumar.